Hello students, welcome to the Spandan Academy class 3rd. Today we shall study the 7th chapter of environmental study. The name of the chapter is saying without speaking. बिना बोले कुछ भी कहना. Let's read our chapter. Let us play a game. In this game everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Divide yourself into groups of 7. चलो एक खेल खेलें. इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है. सभी बच्चे साथ साथ के ग्रुप में बट जाओ. Your teacher will give each group a piece of paper with a situation written on it. इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी ग्रुप को एक एक कागज की पर्ची देगी. हर पर्ची में कुछ लिखा होगा. Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. Keep in mind that you cannot speak. You can express through your face and body actions. सभी अपने अपने ग्रुप में पर्ची पढ़ेंगे. सभी ग्रुपों को पर्ची के अनुसार मूक नाटक तैयार करना है. इस बात का ध्यान रखना कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचानी है. तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है, जैसे आँखों से, चेहरे के हाव भाव से, हाथ के इशारों से. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other group. The others will have to guess what is being acted out. जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी ग्रुप एक एक करके आएं और सबके सामने अपना मूक नाटक करें. सभी देखने वालों को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है. How did you like this game? कैसा लगा यह खेल? Did you find it difficult to act without speaking? क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? Look at the picture given on the next page. The children in the picture are talking to each other through actions. अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखें. चित्र में बच्चे इशारों से बात कर रहे हैं. Have you ever seen anyone talking through actions? क्या तुमने कभी किसी को इशारों में बात करते देखा है? Yes, dumb people talk through actions. हाँ, गूंगे लोग इशारों के माध्यम से बात करते हैं. When do people need to talk like this? लोगों को इशारों में बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है? People who cannot speak need to talk like this. जो लोग नहीं बोल सकते वे इशारों में बात करते हैं. Most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak. These people talk through actions. They understand what the other person is saying by studying their lip movement. हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते. ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातों को इशारे से समझाते हैं. दूसरों की बातें भी उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं. All of us cannot do everything. Some of us sing well, others write good poetry, some can climb trees quickly, while others can run fast. Some can draw well, others can sing in tune. We all are special in our own ways. Hence, in schools, we can learn from each other. Like all children, children who cannot speak and hear also go to school to read and write. In schools, sign language is taught to them. हम सभी तो सब कुछ नहीं कर पाते. हम में से कोई गाता अच्छा है तो कोई कविता अच्छा लिखती है. कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कुछ बहुत तेज दौड़ते हैं. कोई चित्र अच्छा बनाता है तो कोई सुर में गा पाती है.
हम सब अपनी अपनी तरह से खास हैं। स्कूल इसलिए तो है कि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वो भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बात करने की भाषा सिखाई जाती है। Let us read about a child who cannot hear yet who can do many things. आओ एक बच्ची के बारे में पढ़ें जो सुन नहीं सकती, वह बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है। I have a sister, my sister cannot hear. मेरी एक बहन है, वह सुन नहीं सकती। I have a sister, my sister is deaf. She is special, there are not many sisters like mine. मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन अनूठी है। बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होंगी। My sister can play the piano. She likes to feel the deep rumbling chords, but she will never be able to sing. मेरी बहन पियानो बजा सकती है। वो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। वो उंगलियों से छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या वो बंद है। She cannot hear the tune. She likes to leap, to tumble, to roll, to climb to the top of the monkey's barn. Now my sister has started going to my school although. कूदने, उछलने और कलाबाजियाँ लगाने में उसे बड़ा आनंद आता है। मेरी बहन अब मेरी ही स्कूल में जाने लगी है। The teacher and children do not understand every word she says, like sister of water or thumb. मेरी बहन अब स्कूल जाने लगी है। वैसे माँ उसे घर पर होंठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। क्लास में टीचर और बच्चे मेरी बहन से कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते। जो कुछ कहना चाहती है वो अच्छी तरह नहीं कह पाती। I wore my sunglasses yesterday. The frames were large. The lenses are very black. My sister made me take them off when I spoke. What do my brown eyes say to her brown eyes? कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था। उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था। उसे कांच भी एकदम काले थे। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझे से चश्मा उतारने को कहा। मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों से न जाने क्या क्या कहती हैं। इस स्टोरी में ये बताया गया है कि उसकी जो सिस्टर थी वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो एक्सप्रेशंस के द्वारा और अपनी आंखों में देखकर पता कर लेती थी कि हम उससे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसकी बात नहीं समझ पाते थे। जैसे कि पानी पीने के लिए वो हाथ का इस्तेमाल करती थी, हाथ के अंगूठे से इस्तेमाल करती थी कि मुझे पानी पीना है। कुछ भी कहना है तो वो हाथों से एक्सप्रेस करती थी या फिर अपनी आंखों से बोलने की कोशिश करती थी। Our eyes tells a lot. Small children tell a lot through their face and hands. Even before they learn to speak, they understand a lot too. हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चों तो बोलने सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं। चेहरे से, हाथों से वे कितना कुछ समझते भी हैं। You must be wondering what kind of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. You have to make these, but only after reading what is written alongside. तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे चेहरे हैं, ना इनमें आँखें हैं, ना नाक है और ना ही मुंह। ये सब तो तुम्हें बनाने हैं
पर साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर। दिस इज आफ्ताब। हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन एंड ब्रोकन। ही इज सैड, हाउ विल हिज फेस लुक। यह आफ्ताब है, उसका खिलौना गिरकर टूट गया है, वह दुखी है, कैसा होगा इसका चेहरा। चलिए हम देखते हैं इसका चेहरा कैसे होगा। यह है सैड फेस, मीन्स दुखी चेहरा। दिस इज जूली। हर लिटिल सिस्टर वॉज born yesterday. She is very excited. How will her face look? यह जूली है, कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई है, वह बहुत खुश है, उसका चेहरा बनाओ। This is Yamini's mother. Today while Yamini was talking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. यह यामिनी की मम्मी है। आज यामिनी ने जब रसोई से अचार की शीशी निकाली, शीशी गिरकर टूट गई। मम्मी का चेहरा बनाओ। तो कभी कभी देखा है आपने, मम्मी गुस्से में होती हैं, अपन से कोई चीज़ गिर जाती है या फूट जाती है, तो गुस्से में मम्मा का फेस कैसा लगता है, तो वो फेस अपन को यहाँ बनाना है। नेक्स्ट है, दिस इज रिहाना। She is afraid of dogs. While playing, suddenly a dog come in front of her. How will Rihanna's face look? यह रिहाना है। रिहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है। वह खेल रही थी, अचानक उसके सामने कुत्ता आ गया। कैसा होगा रिहाना का चेहरा? आपने देखा है, किसी चीज़ से डर लगता है तो अपने फेस पे डर वाले एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। तो ये अपन देखते हैं कि रिहाना का फेस कैसा होगा जब वह डॉगी उसके पास आ गया होगा। तो By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में है। Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो, माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ में आ गया हो? हाँ, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। We can talk through dance as well. In dance, the hands and face are used to convey feelings. These are called mudras and bhavs. नाच से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच में इशारों और चेहरों के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें मुद्राएं कहते हैं। Look at and do this mudra. Learn some more dance mudras and do them. नीचे चित्र में नाच की कुछ मुद्राएं दी हैं, इन्हें देखो और करो। नाच की कुछ मुद्राएं तुम भी सीखो और करके दिखाओ। थैंक यू।